मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे और इस बार भी हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स ही पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था वो एक बार पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक मैंने हटा दिया था क्योंकि इसके नोट्स थोड़े सही नहीं बने थे। तो हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जूमोडाइम्स, रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जन औषधि दिवस, स्पाइसेस इन इंडिया, एपिक नंबर, माधव नेशनल पार्क, Vanuatu Island, pelicans and painted storks, State of Madras versus Fiji row case, solar flares and Aditya L1, site report of 2025, river Thames and algae bloom, Mars, Giloy, Champakam Durajan case of 1951, farmers earning in agriculture produce, RBI के एक सर्वे के उस पर पढ़ा था, और ये UCE and TRA2B gene एंड क्वांटम ग्रेविटी। तो अभी हमको पढ़ना है केप वल्चर से और आगे के टॉपिक्स पढ़ने। सो वाई दीज केप वल्चर्स आर इन न्यूज़? आफ्टर 30 years, the Cape vultures, Gyps coprotheris, has been sighted in South Africa's Eastern Cape province near Mountain Zebra National Park. So the scientific name is coprotheris, Gyps coprotheris. They are endemic to Southern Africa. मीन्स दिस रीजन, ये इस रीजन में मिलती हैं। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक और और लिसोथो, इस रीजन में ये जो हैं केप वल्चर्स पाई जाती हैं। साउथ अफ्रीका, लिसोथो, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक। फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं? क्रीमी बफ प्लूमेज, डार्क फ्लाइट एंड टेल feathers, honey colored eyes, bluish throat, black bill. Behavior: carrion feeder, feed only on dead animals. Social animals, lives in groups. Monogamous, raises one chick per breeding season. Conservation status is vulnerable, listed in IUCN Red List. Vultures exclusive to Africa. Only 3 vulture species are exclusive to Africa: cave vultures, white-headed vultures, hooded vultures. Globally there are total 23 species. ओल्ड वर्ल्ड में 16 स्पीशीज़ रहती हैं। ओल्ड वर्ल्ड मतलब कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और जो बाकी की 7 स्पीशीज़ हैं वो अमेरिकाज और कैरिबियन में रहती हैं। अब हमारे देश में मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में कौन सी वल्चर्स पाई जाती हैं? वो है हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। देयर साइंटिफिक नेम इज जिप्स हिमालयनेसिस and they belong to family of Accipitridae, which also includes eagle, kites, buzzards and hawks. So this Himalayan vulture, it has typically white head, very broad wings and short tail feather. ठीक है, ये इसकी फोटो है। Then it has white neck graph and a yellow bill. So इसकी bill yellow होती है and the whitish body with dark brown greater covered feathers. So they are found in higher regions of Himalayas, Central Asian mountains and Tibetan plateau at the elevation of 1200 to 5500 meters. और इसका स्टेटस क्या है? ये नियर थ्रेटेंड है। तो ओल्ड वर्ल्ड की इन सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया मिलती है ये। ओके, देन Tribunals and Tribunal Reforms Act of 2021. Tribunals are quasi-judicial bodies. They resolve dispute with respect to administration, taxation, environment, securities. Functions are to adjudicate disputes, determine rights, make administrative decisions, and review rulings. Constitutional provisions क्या है? Introduced via 42nd Amendment Act of 1976. Article 323A, administrative tribunals were established for public services matters, and according to Article 323B, tribunals for taxation, foreign exchange, import, export, industrial and labor dispute, elections, food security was established. Tribunals Reforms Act of 2021 streamlined tribunals, abolished certain appellate tribunals and transferred their jurisdiction to high courts and other bodies. Key provisions were abolition of tribunals and jurisdiction was shifted. Reforms were based on Madras Bar Association versus Union of India case, and सर्च कम सिलेक्ट कमेटी जो होती है सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स के लिए, वो उसमें कौन कौन होता है? चेयरपर्सन होता है उसके CGI या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई जज जिनके पास कास्टिंग वोट होता है। मेंबर्स में रहते हैं 2 सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के, सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नॉन वोटिंग मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ रेलेवेंट मिनिस्ट्री। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए चेयरपर्सन कौन होते हैं? अच्छा, ये सिलेक्ट
कम सर्च कमेटी, मतलब जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स को और चेयरपर्सन को इलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में चेयरपर्सन कौन रहेगा इधर का, चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जिनके पास होता है कास्टिंग वोट। मेंबर्स में रहता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सिटिंग या फिर आउटगोइंग ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। अब यहाँ पे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज था या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट जज सिर्फ, ठीक है। टेन्योर क्या रहता है, मिनिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स, टेन्योर 4 ईयर्स का रहता है, और या फिर और मैक्सिमम एज मेंबर्स के लिए होती है 67 ईयर्स और चेयरपर्सन के लिए होती है 70 ईयर्स। तो जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से रहता है। रीअपॉइंटमेंट अलाउड रहता है विद प्रेफरेंस टू प्रायर सर्विस, रिमूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। 7th नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 दिसंबर को साइट्स को अडॉप्ट किया गया था 1973 में। और जो ये डे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उसको UNGA बनाता है दिसंबर 2023 से। और इस बार का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। फोकस इज ऑन कंजर्वेशन फाइनेंस, biodiversity protection, tackling climate change, biodiversity loss and pollution. 7th meeting of National Board for Wildlife. लोकेशन कहाँ हुई थी मीटिंग, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। की अनाउंसमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, स्पेशल कंजर्वेशन प्लान्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नेशनल कंजर्वेशन प्लान को लॉन्च किया गया। फोकस ऑन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिकवरी, घड़ियाल कंजर्वेशन और इंडियन स्लॉथ बेयर, न्यू डेडिकेटेड टास्क फोर्स फॉर्म फॉर कंजर्वेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड घड़ियाल सेपरेट टास्क फोर्स इनके लिए बनाया गया कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। दैन प्रोजेक्ट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथ, प्रोजेक्ट लाइन एक्सटेंडेड फॉर 10 more years, एक्सपेंशन अक्रॉस गुजरात सौराष्ट्र रीजन। 16th एशियाटिक लायन सेंसस ऑफ May 2021 लास्ट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, मतलब हर 4 साल में सेंसस होता है। प्रोजेक्ट चीता एक्सपेंशन टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड बनी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्डियोटिस निग्रिसिप्स। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, इंडियाज़ मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। 2011 में इसको ऐसा डिक्लेयर किया गया था। फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़ है। पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान गुजरात और थोड़े बहुत इन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अमंग दी हैवीएस्ट बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, प्रपोज्ड फॉर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में चल के पीकॉक को सेलेक्ट किया गया। ईयर लॉन्ग पेरेंटल केयर फॉर चिक्स। और उसके बाद में अचीव मेच्योरिटी इन अराउंड 3 to 4 years। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और ये क्या था इसका, माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो भी करके इसका नाम था, इसके भी अपेंडिक्स 1 में है और WPA के स्केड्यूल 1 में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बारमार रीजन में पड़ता है, बारमेर रीजन में। और GIB चिंकारा खेजरी रोहिदा, ये जो सारे स्पीशीज़ हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था 1980 में और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1992 में। कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी नियर नालिया गुजरात, ये स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, होम टू 3 स्पीशीज ऑफ बस्टर्ड्स, GIB लेसर फ्लोरिकन्स एंड मैक्वीन बस्टर्ड्स। ओके, देन इंडियन स्लॉथ बेयर, one of 8 bear species and they eat bugs and termites। इंडिया, भूटान और श्रीलंका में पाए जाते हैं, ज़्यादातर नॉकटर्नल होते हैं। IUCN लिस्ट के अनुसार ये वल्नरेबल हैं, WPA की शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये, दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी इन कर्नाटका एंड जसोरे सेंचुरी इन गुजरात। ओके, फिर उसके बाद न्यू वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशंस में उन्होंने जो रिवराइन डॉल्फिन का एस्टिमेशन रिपोर्ट पब्लिश किया था, इंडियाज़ फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज, और टोटल डॉल्फिन जो है वो 6327 है, कवर्ड गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस बेसिन्स। तो भी डॉल्फिन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो जो डॉल्फिन, हाँ एक सेकेंड, ये जो सर्वे हुआ था वो हुआ था 2021 से 23 को लेके अक्रॉस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, ओनली 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स इन ब्यास रिवर, कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ, क्या था इसका, कुछ तो फुल फॉर्म था, हाँ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शायद, ठीक है। अक्रॉस ये गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस बेसिन में जो डॉल्फिन का जो सरफेस टाइम है वो सिर्फ 1.26 सेकेंड्स के लिए आती है सरफेस वाटर के बाहर, फिर
डाइव करती हैं 107 सेकेंड्स के लिए। इसके बाद जो डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स थे वो कहाँ थे? यूपी, बिहार में भी डीपर रिवर में, मतलब कि जो रिवर्स के जो डीपर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे चैनल ऑफ घघरा एंड गंडक, कोसी, सोन, क्योंकि डीप हैं यहाँ के चैनल्स, तो इसलिए इधर पे हॉटस्पॉट था। कोल्ड स्पॉट कहाँ पे था? जहाँ पे लो या फिर बिल्कुल भी डॉल्फिन्स नहीं थी। गंगा के नरोरा टू कानपुर रीजन में और फारुखाबाद टू कमाज रीजन में, यमुना, शारदा, राप्ती, बरा के नासा में यहाँ पे बहुत कम डॉल्फिन्स देखने को मिली है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ हेल्थ and conflict management, National Referral Center for Wildlife, Junagadh, Hub for Wildlife Disease Management and Health, Center of Excellence in Human Wildlife Conflict, location is WII Coimbatore campus, functions equip rapid response teams, use AI, remote sensing, geospatial tools, train communities and staff for mitigation, conflict zone surveillance, और ये सारे एफर्ट्स हैं। नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन में ट्रेडिशनल नॉलेज कलेक्शन, अर्ज्ड टू गैदर एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में रोल ऑफ लोकल एम्फेसाइज्ड, एग्जाम्पल मालधारी कम्युनिटी एंड लैंड कंजर्वेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल and sustainable coexistence. Then comes India's global push for critical mineral security. National Critical Mineral Mission, rupees 4,000 crore allocated for domestic and global exploration. Africa engagement, Zambia, 9,000 square kilometers secured for copper, cobalt exploration. Mining rights expected in 2 to 3 years. Okay, partnering with DR Congo, Tanzania, Mozambique, Rwanda for critical mineral assets. South America and Australia active in Argentina, Chile and Australia through Kabul for lithium and cobalt exploration. Strategic importance क्या है? Critical minerals vital to economy and national interest. India's priority list 30 minerals including lithium, cobalt, graphite, nickel and rare earth elements. Disability rights and judicial services in India. Supreme Court ruled visually impaired candidates allowed to participate in judicial services. Law upheld PWD Act of 2016 rights treated as fundamental rights. ऐसी रूल में क्या बोला उन्होंने? MP Rule 6A Judicial Services excluded visually impaired, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया उन्होंने. Violates Article 14, 15 and rights-based approach उन्होंने लिया, replaced charity-based model. Affirmative actions, relaxation similar to SC/ST if adequate PWD candidates not available. Reasonable accommodation referenced UNCRPD and RPWD Act, separate cutoff for PWDs as per Indira Sahni case. Landmark disability case कौन से थे? सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ 2009, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई थी. रवि प्रकाश गुप्ता केस और 2010, यहाँ पे नो अनफेयर जॉब डिनायल इसकी बात की गई थी. और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 2013, 3% रिजर्वेशन इन टोटल कैडर फॉर ब्लाइंड. डेफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर Association 2013, equal transport allowance. Rathod case of 2024, function ability over rigid eligibility. Status क्या है? According to 2011 census, 2.21% of PWDs in India, and this act enlists 21 disability types: visual, hearing, cerebral palsy and dwarfism etc. Constitutional and legal backing क्या है? Fundamental rights 14, 19, 21 DPSP में Article 14, public assistance during disability. 11th schedule में 243G में social welfare. 12th schedule के 243W में protection of weaker sections. Law that support PWDs, RPWD Act of 2016, equal opportunity and participation. National Trust Act 1999, support for autism, cerebral palsy etc. Mental Health Care Act of 2017 related to mental illness rights. Challenges faced क्या है? Social exclusion, transport barriers, communication barriers, policy barriers, poor implementation and inaccessible programs. Gender discrimination, 44% are women, rural and marginalized. Government policies, PM Daksh, skill development and rehabilitation. Accessible India campaign, infrastructure, accessibility,
for PWDs, and then Deen Dayal scheme, NGO-based rehabilitation, Adeep scheme, aid and appliance support, National Fellowship, higher education for PWD students, Wallace line, a biogeographic boundary. YA न्यूज़ 19th सेंचुरी में एक नेचुरलिस्ट थे अल्फ्रेड वॉलेस करके, उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्टार्क स्पीशीज डिफरेंस बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया लीडिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वालेस लाइन. व्हाट इज वालेस लाइन? एन इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन faunal regions, runs between Borneo, सुलावेसी, बाली, लोम्बोक. स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वेस्ट एशिया में मंकीज़, राइनोस, टाइगर्स, स्क्विरल्स और हॉर्नबिल्स हैं. ईस्ट में माने कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज, कॉकैटूज, हनी ईटर्स, ऐसे सारे हैं. Wallace region, zone between Wallace line and Weber line is known as Wallacea region, contains islands like Sulawesi, Timor and Lombok, host unique and endemic species, example Komodo, dragon, babirusa. Reasons for division क्या है? Continental drift, Australia drifted north from Antarctica approximately 85 million years ago. Deep ocean barriers, straits like Makassar remained submerged during ice ages. Climate and ecology, species evolved separately due to different environmental conditions. Narwhals, the sea unicorns of the Arctic. YN न्यूज़ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो नारवाल्स हैं वो अपनी टस्क को हंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं पहली बार. ठीक है, रिवीलिंग न्यू बिहेवियरल इंसाइट्स. जो नारवाल्स हैं उनका साइंटिफिक नेम है मोनोडॉन मोनोसेरोस. मीडियम साइज टूथेड whales होते हैं found in deep Arctic waters. Males have a long spiral tusk up to 3 meters, which is an elongated upper left tooth. Unique among toothed whales, no teeth in their mouth. Behavior and adaptation, use tusk to stun prey like Arctic char and for mate competition. Highly social, live in pods of 2 to 25. Limited migration compared to other whales. And their diet includes Greenland halibut, Arctic and polar cod, squid, shrimp, etc. Conservation status क्या है? Least concerned है. US, Taiwan, China tensions and strategic importance of Taiwan. YN News, US revised its Taiwan fact sheet, removing the statement "We do not support Taiwan independence" and promotes Taiwan's global participation. ताइवान रिलेशंस एक्ट ऑफ 1979, ये यूएसए का एक एक्ट है जिससे कि यूएस ताइवान टाइज जो स्ट्रेंथन होते हैं, ट्रेड सपोर्ट होता है, कल्चरल एक्सचेंज, डिफेंसिव आर्म्स सेल्स. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ताइवान की? ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है और ताइवान स्टेट के पास है जो कि एक ग्लोबल शिपिंग रूट्स है. 60% ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करता है और 90% एडवांस चिप्स को प्रोड्यूस करता है, मेकिंग इट क्रिटिकल टू ग्लोबल टेक सप्लाई. ताइवान चाइना डायनामिक क्या है? चाइना का व्यू है कि वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है. ताइवान का क्या व्यू है कि वो एक अलग देश है, सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी है और उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और खुद के लीडर्स है. इंडिया की क्या पोजीशन है वन चाइना पॉलिसी पे? इंडिया ने इस तक पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 2003 में और टिबेट ऑटोनमस रीजन को भी चाइना का ही पार्ट माना था. सो अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे. अब जो ताइवान स्टेट है ये है, दिस इज़ चाइना, चाइनीज़ मेनलैंड, और ये है ताइवान. इसके बीच से जो है स्ट्रेट उसको बोलते हैं ताइवान स्टेट. इसके ऊपर मतलब ताइवान के नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी, उसके साउथ ईस्ट में फिलीपींस सी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है लुजॉन स्ट्रेट भी है और वेलिंगटन चैनल है. और ताइवान के साउथ वेस्ट में साउथ चाइना सी पड़ता है और यहाँ के जो इसके डायरेक्ट साउथ में जो है कंट्री वो है फिलीपींस. सो ये इसका जो है वो मैप में पोजीशनिंग थी. नासा स्फीयर एक्स मिशन का जो ये एक स्पेस टेलीस्कोप है डिज़ाइन टू एक्सप्लोर द ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स एंड ट्रेस कंडीशंस फॉर लाइफ. इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मैप 450 मिलियन गैलेक्सीज इन 102 कलर बैंड्स एंड over 2 years using spectroscopy. Study cosmic inflation. So एक मिनट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ टर्म रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इट इज़ रैपिड एक्सपेंशन आफ्टर बिग बैंग. इसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है. Analyze molecular clouds for life forming molecules like water, CO2, CO, और ये measures the cosmic
infrared background to identify unknown cosmic phenomenon. Big Bang theory suggests that universe began as a hot dense point and has been expanding ever since. So ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स.